Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will talk about elements in environmental psychology. Basically, there are six basic elements that are considered as the basic factors or basic elements of the environment that affects the human beings. First element is known as attention. The next one is perception and cognitive map. Third is ideal environment. Fourth one is environmental stress and management. The fifth element is known as involvement, and the sixth one is known as protective behavior. These all six elements play major role in examination of how our environment affects us and how we as a part of environment affects the environmental factors, how we affect the environment. These are six basic elements in environmental psychologists that play major role in our behavior and in understanding our behavior. First element is known as attention. Attention is the first step in any interaction with the environment, interaction between individual and the environment. Attention focuses on how we notice, how we perceive, and how we observe our environment, how we attend our environment, how we pay attention to our environment. Basically environment में दो तरह के stimuli होते हैं, दो तरह के factors होते हैं. The first type of stimuli are those stimuli that demand our attention. कुछ ऐसे stimuli होते हैं, कुछ ऐसे environmental factors होते हैं या हमारी surroundings में कुछ agents ऐसे होते हैं that are highly engaging. वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं या इतने डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं कि वो दोनों सूरत में, चाहे हाईली अट्रैक्टिव हो या हाईली डिस्ट्रैक्टिंग हो, वो हमारी अटेंशन को कैच करते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिमांड करते हैं हमारी अटेंशन को. और कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में दैट वी विलिंगली आर वी इवन ईगरली डायरेक्ट अवर अटेंशन टूवर्ड्स. हम जिन पे अपनी मर्जी पे फोकस पे कर रहे होते हैं, जिनको अपनी मर्जी से, इट मीन्स दैट दोज एजेंट्स आर वेरी मच वैल्यूएबल फॉर अस. हम खुद अपनी मर्जी से हम ईगरली उनको या विलिंगली उनको अटेंशन पे कर रहे होते हैं, उनकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. First, those stimuli that demand our attention or that catch our attention, जो फ़ौरन से हमारी फोकस को, हमारी अटेंशन को कैच कर लेते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपीलिंग होते हैं या वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं. तो दूसरे वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, वो एजेंट्स जो हमारे लिए अपने लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, और वो एजेंट्स जो हैं वो हम विलिंगली उनको अटेंशन पे कर रहे होते हैं, विलिंगली उनकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं. Second element is known as perception and cognitive map. Perception is the cognitive process. Mental process होता है. After attention, we perceive the world around us. How? Environmental psychology focus करती है that how we perceive this world around us. ये हमारी perception बनती कैसी है, ठीक है. It is eventually organized and stored in our mind, which is known as cognitive map. Cognitive map is basically mental representation of any image, any object or any environment. हम बेसिकली जो चीज़ों को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, नोटिस करते हैं, और उसके बाद हम उसको अटेंशन पे करते हैं. जिन चीज़ों पे हम अटेंशन पे करते हैं, फोकस करते हैं, वही हमारी परसेप्शन बनती है. परसेप्शन इज़ बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सेंसेशन. हमारा माइंड किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा होता है हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जो हमारी बॉडी जो है वो हमारे माइंड को सेंड कर रही होती है. हमारे सेंस ऑर्गन्स एनवायरनमेंट से बहुत सी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. उसमें से जो डिमांडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम अटेंशन पे करते हैं, उन पे फोकस करते हैं, और जिन चीज़ों को हम सिलेक्टिवली अटेंड करते हैं उन्हीं को हम इंटरप्रेट भी करते हैं, वही हमारी परसेप्शन भी बनता है. उनसे रिलेटेड कॉग्निटिव मैप बन जाता है. कॉग्निटिव मैप इज बेसिकली मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ द स्पेशियल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स आवर एक्सपीरियंसेस विद आवर करंट परसेप्शन, helping us to recognize and to understand the world around us and allowing us to navigate it effectively. तो it means कि हम जिन चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनका एक कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं, उनका एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वायरमेंट की तरफ रिएक्ट करते हैं.
Now, some environments are considered as the ideal environment. Ideal environment is third basic element in environmental psychology. Ideal environment are those places where people feel self-assured and where they feel self-competent. They feel competent enough to work about, where they can familiarize themselves with the environment whilst also being engaged with it. जब इंडिविजुअल जो है वो एक स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील कर रहा होता है, जहाँ पे वो कॉम्पिटेंट फील कर रहा होता है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, फेमिलैरिटी को परसीव कर रहा होता है, वो उस इंडिविजुअल के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है. अब 4 बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इन्वायरमेंट को आइडियल इन्वायरमेंट बना सकते हैं. अगर ये 4 फैक्टर्स किसी भी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, देन दिस इन्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज ideal environment. First factor is known as unity. Unity is the sense that things in the environments work well together. जितनी united होंगी, जितना combine होंगी, मिल के अच्छा काम हो सकता है. हम चीज़ों को utilize कर सकते हैं, उनको combine कर सकते हैं, उनको unite कर सकते हैं और unity के साथ हम अपनी best performance दे सकते हैं. Second जो factor है, it is known as legibility. The assumption that person can traverse and navigate the environment without getting lost. It means that it is basically focuses on that a person can cross and find the way in the environment विदाउट गेटिंग लॉस्ट. ठीक है, तो इन्वायरमेंट में उसको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, वो इन्वायरमेंट को सर्च आउट कर सकता है, वो इन्वायरमेंट में किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को सर्च करके उसके अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग उसको अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग या अपने वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको कोई ना कोई उसको सोल्यूशन मिल सकता है. थर्ड बेसिक फैक्टर इज नोन एज कम्प्लेक्सिटी. जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उतना पॉलिश करती है हमारे बिहेवियर को. द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाइवर्सिटी इन द इन्वायरमेंट दैट मेक इट वर्थ लर्निंग अबाउट. ईजी टास्क जो है वो हमारे जो हार्ड वर्क है उसके लिए हमें कभी भी कंपेल नहीं करेगा. ईजी टास्क जो है बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होगा. हम उसके लिए कभी भी कोई हार्ड वर्किंग सिचुएशन में नहीं जाएंगे, कोई एफर्ट पुट नहीं करेंगे, बहुत लेस एफर्ट के साथ इजी टास्क को हम अकम्प्लिश कर लेते हैं. लेकिन कम्प्लेक्सिटी होगी इन्वायरमेंट में, कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट होगा, लर्निंग एनहेंस होती जाएगी. हम उसमें उतनी एफर्ट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को सर्च करेंगे. क्यूरियोसिटी को एनहेंस करती है कम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट, और जितनी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है उतनी स्ट्रगल ज़्यादा होती है, उतना सर्च ज़्यादा होती है और उस लर्निंग ऑटोमेटिकली हमारी इनहेंस होती जाएगी. फोर्थ बेसिक फैक्टर इज नोन एज मिस्ट्री. The expectation of being able to acquire more information about an environment. मिस्टीरियस environment जो होते हैं, मिस्ट्री जो होती है environment के अंदर, वो भी उस environment को ideal environment बनाती है, क्योंकि इंडिविजुअल की क्यूरियोसिटी को इनहेंस करती है और इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को, अपनी एबिलिटी को परसीव कर रहा होता है दैट they expect that they are able to acquire more and more information about the environment. These are the 4 factors that can help to make the any environment as ideal environment. The fourth element is known as environmental stress and managing. इन्वायरमेंट समटाइम्स हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है. लोगों के अंदर, इन्वायरमेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस को क्रिएट कर लेता है, और ये स्ट्रेस लीड करती है पुअर हेल्थ की तरफ, रिड्यूस सेल्फलेसनेस, इनहेंस्ड बिहेवियरल एंड कोग्निटिव वीकनेस एंड लैक ऑफ सफिशिएंट अटेंशन पेड टू द इन्वायरमेंट इट्सेल्फ. अब एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फंक्शनल होते हैं. तो एनवायरनमेंट समटाइम्स क्रिएट करता है स्ट्रेस, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स को लीड करता है. मेजर बेनिफिट ऑफ हैविंग अ प्राइवेट स्पेस टू लिव is that we can control incoming stress inducing stimuli to a certain extent anyway. हम अगर हमारे पास प्राइवेट स्पेस है टू लिव इन, तो हम क्या करते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के पास चांस होता है कि टू स्पेसिफिक एक्सटेंट वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस इंड्यूसिंग स्टिमुलाई को अवॉइड कर सकते हैं. We can also attempt to regulate our environmental related stress by controlling or managing it, or coming up with ways to understand and to make sense of such stimuli and sharing our lessons learned with
others. अब जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होती है उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट भी होती है. इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है, इन्वायरमेंट के अगर कोई नेगेटिव फैक्टर्स हैं तो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रेस काज करती है पुअर हेल्थ कंडीशंस को. ये फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है. अब इसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. इंडिविजुअल के पास अगर प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है, इंडिविजुअल के पास इन्वायरमेंट में प्रॉपर फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो इंडिविजुअल उस स्ट्रेस को से एस्केप कर सकता है, इंडिविजुअल उस स्ट्रेस को एवॉइड कर सकता है, इंडिविजुअल उस स्ट्रेस की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है, इंडिविजुअल उस स्ट्रेस को डिफरेंट वेज में डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करके रिड्यूस कर सकता है और उसके साथ साथ लोगों के साथ अपने लर्न लेसन्स को शेयर करके उनको भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं. Fifth element is involvement. Involvement refers to how much a person participates, how much he or she is involved in the environment, interacting and engaging with their surroundings. कितनी interaction है human की उसके environment के साथ, उसकी surrounding के साथ. It can also refers to their participation in the design, in the adjustment and in organization of environment. इन्वॉल्वमेंट जितनी ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट के साथ उतना हेल्पफुल होती है क्रिएटिविटी में, उतना प्रोडक्टिव बनाती है आपको, आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करती है. सो हाउ मच अप टू अ स्पेसिफिक लेवल की बात हो रही है, हाउ मच एन इंडिविजुअल, हाउ मच अ पर्सन पार्टिसिपेट्स इन द इन्वायरमेंट, हाउ मच ही और शी इंटरेक्ट्स विद, ही और शी इंगेज विद द सराउंडिंग्स. The sixth basic element is protective behavior. प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स वो एक्शंस होते हैं दैट इंडिविजुअल टेक्स टू सेफगार्ड, टू स्टीवर्ड एंड appropriately manage the environment. This refers to both natural environment and built environment, which requires different types of protective behavior to effectively maintain. ठीक है. प्रोटेक्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट को अपने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए या किसी भी एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट के लिए वो बिहेवियर जो सेफगार्ड के लिए यूज़ होते हैं वो प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स होते हैं. This is the kind of behavior that is necessary for creating an ecologically sustainable society. Environment की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो अपने एनवायरनमेंट को सर्वाइवल प्रोवाइड कर सके ताकि वो एक सस्टेनेबल सोसाइटी को क्रिएट करने में हेल्पफुल रहे. सो दीज आर 6 बेसिक एलिमेंट्स that are considered as part of or elements of environmental psychology. Thank you so much.